Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and enjoying the and watching the videos properly. And moreover, I hope you have no doubt in the chapter till the video has been given to you, that is the heredity and evolution. Now, before starting with a new topic, that is monohybrid cross, I just want to recapitulate the topics that we have studied. We have studied what is heredity and some terms involved in heredity, like your dominant trait, recessive trait, pure lines, gametes, homozygous pairs, and heterozygous pairs, that we have studied. Now, at the end, we have given you a word, that is George Mendel is known as the father of genetics. Why it is known as the father of genetics? Because he given us the concept of genetic material and how the information is being transferred from one generation to another. Okay, so basically, the rules of inheritance of traits in human beings are related to the fact that both mother and father contribute an equal amount of genetic material. So रूल ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है आपका, कि बेसिकली जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से लेके आ रहे हैं, तो वो ये कहता है आपका कि इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा मदर का और फादर का in the genetic material, in the genetic constitution of the offspring, and offspring is the child. So an offspring will get two versions of that trait from the two parents. क्या कह रहा है कि दो versions मिलेंगे, मीन one set from the father and the one set from the mother. That's why it is saying two versions. Mendel worked out rules for inheritance of these traits. Okay, now the next point is George Gregor John Mendel, regarded as the father of genetics. Okay, अब क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन गार्डन पीस, जो हम मटर खाते हैं, दैट इज गार्डन पीस, एंड द साइंटिफिक नेम इज योर पाइसम सतीवम, and you need to remember this, the word, the Pisum sativum. Okay, instead of writing garden peas, you need to write the word Pisum sativum. in the garden in the garden behind his monastery. Monastery का होता है क्लास, वो प्लेस जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, वर्शिप करते हैं. सो ही ऑब्जर्व नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स. उन्होंने बहुत सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स लिए थे एंड उनकी ऑब्जर्वेशंस कुछ थी. नाउ व्हाट आर द कंट्रास्टिंग करेक्टर्स ही हैज़ टेकन? See, first is the height, second one is seed shape, third one is seed color, fourth one is flower color, fifth one is pod shape, sixth one is pod color, seventh is flower position. Now the first one is your height. Height is your tall or dwarf. Like you can say the tall one is a dominant trait and the second one is a recessive trait, जो आपको इस टेबल में दिखाया गया है. ओके, सो हमने टॉल में क्या लिया कि आपके प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा है एंड डॉर्फ में छोटी है, एंड वो हमने रिसेसिव में दिखाया. नाउ सेकेंड वन इज सीड शेप. सीड कैसे? राउंड हो सकते हैं या रिंकल. रिंकल मीन्स कि प्रॉपर सर्कुलर शेप में नहीं है. ओके, सो डोमिनेंट में क्या है? राउंड, एंड रिंकल क्या है? सर्कुलर शेप में नहीं है बेसिकली. ओके, नेक्स्ट इज सीड कलर. सीड कलर इज योर येलो एंड ग्रीन. दैट मीन्स सीड कलर येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है. फोर्थ वन इज फ्लावर कलर. फ्लावर का कलर या तो वायलेट होगा या वाइट होगा. दैट मीन्स दिस वन इज फ्लावर कलर एंड दिस वन इज वाइट वन. वायलेट इज अ डोमिनेंट ट्रेट एंड वाइट इज एन रिसेसिव ट्रेट. नाउ पॉट शेप, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड. बेसिकली इन्फ्लेटेड मीन्स कि पूरी तरह से प्रॉपरली ग्रो हुआ है, फूला हुआ है. बट कंस्ट्रिक्टेड इज कि कहीं कहीं से खुला हुआ नहीं है, मतलब कहीं कहीं से फूला हुआ नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज पॉट कलर. पॉट का कलर या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा. ग्रीन इज अ डोमिनेंट ट्रेट एंड द येलो वन इज अ रिसेसिव ट्रेट. नेक्स्ट फ्लावर पोजिशन. फ्लावर या तो बिल्कुल कॉर्नर पे होगा, जैसे बिल्कुल ट्री की ब्रांचेस खत्म हो गई, बिल्कुल लास्ट पे जाके फ्लावर ग्रो करे, दैट इज एन एक्सियल पोजिशन. बट अगर अगर वो बेस पे ग्रो कर रहा है, दैट इज नोन एज टर्मिनल पोजिशन. हवा में उड़ रहा है, दैट इज एक्सियल, और बेस पे ग्रो कर रहा है तो दैट इज टर्मिनल पोजिशन. Okay, these are the 7 characteristics of Pisum sativum, that is garden pea, that Mendel has chosen for his experiments. And you need to remember these 7 traits. Now, before starting a monohybrid cross or
मेंडल ने क्या किया इनके साथ हम वो बाद में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर प्योर गैमेट्स, व्हाट आर डिफरेंट टर्म्स मोर इन्वॉल्व ओवर हियर. Now the first one is pure gametes. Pure gametes का मतलब क्या होता है? ये गैमेट्स की बात क्लास जब भी की जाए इसका मतलब होता है कि वो हेप्लॉइड है. हेप्लॉइड मीन्स आपको पता है आपका जेनेटिक मटेरियल 2n होता है. फाइन. अगर इस 2n को हम माइटोसिस करते हैं, मियोसिस करते हैं, देन इट विल बिकम एज n. This single n is known as gamete and this is your haploid one. This is your haploid one. तो प्योर गैमेट्स आर द गैमेट्स दैट आर हेप्लॉइड. प्योर गैमेट्स वो होंगे जो सिंगल होंगे, उसके अंदर कोई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं होंगे. द गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर एंड डू नॉट पोजेस होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्या था? सपोज आपको याद होगा तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कैपिटल बी एंड कैपिटल बी. फाइन. और एक हमने पढ़ा था कैपिटल बी एंड एक पढ़ा था स्मॉल बी. फाइन. ये हेट्रोजाइगस था और ये होमोलोगस, बिकॉज इसमें दोनों ही कैपिटल बी थे. फाइन. सो अगर हम इसका मियोसिस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? इसके पास फर्स्ट इज कैपिटल बी एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो कैपिटल बी. बट अगर हम इसका मियोसिस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा क्लास? दैट यू हैव अ वन कैपिटल बी सेट एंड द वन स्मॉल बी सेट. फाइन. सो दैट मीन्स दिस वन is a homologous chromosome and do not possesses homologous chromosome. यहाँ पे कोई homologous chromosomes नहीं होंगे. मीन्स यहाँ पे सिंगल सेट होगा एंड homologous में दोनों का पेयर होना ज़रूरी था. इंस्टेड दे possesses वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप. यही आपको बताया गया. जैसे यहाँ पे एक एक क्रोमोसोम एक एक तरह का है, यहाँ पे भी एक एक क्रोमोसोम एक एक तरह का है. फाइन. आइदर रिसेसिव और डोमिनेंट. नाउ सच एज टी फॉर टॉल. बेसिकली हम टॉल प्लांट के लिए अगर डोमिनेंट होता है तो हम प्योर लाइंस में कैपिटल टी लेते हैं. सो इससे जो गैमेट्स आएंगे आपके पास, दैट विल कम आउट टू बी कैपिटल टी एंड द कैपिटल टी. एंड सेम फॉर द स्मॉल प्लांट, दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. सो दीज आर द प्योर गैमेट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दे. Now next is Punnett square. Now just have a look on this Punnett square so that you can understand better. Now you have basically this one and this one. These are your father and this is your mother and this is your क्रोमोसोम ओवर हेयर जो पेयर्स में अवेलेबल हैं. बट ये कैसे पेयर्स हैं? आपके हेट्रोजाइगस हैं. ओके. सो यहाँ से जो दो गैमेट्स निकलेंगे दैट विल बी कैपिटल ए एंड अ स्मॉल ए. सेम वे वी हैव अनदर सेट ऑफ मदर दैट विल बी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. सो अब हमने क्या किया? इन दोनों को क्रॉस कराया तो अल्टीमेटली वी विल गेट कैपिटल ए एंड कैपिटल ए. बट जब हमने ए और कैपिटल ए को क्रॉस करा तो वी विल गेट कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. नेक्स्ट वी ए एंड स्मॉल ए. सो हमारे पास क्या है? कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. कुछ नहीं कर रहे, जैसे रोज और कॉलम्स मल्टीप्लाई करते हैं हमने वही किया है. यहाँ पे रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया एंड एक डिजायर्ड बॉक्स में लिख दिया. सो दैट विल गिव अस द बेसिकली द जीनोटाइप की आपके पास कौन सा जीन आया है एंड उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. That is known as Punnett square method, which is the best method to represent the genotype and the probability of getting a particular trait in the offspring. Okay, now you can see that the genotype क्या होता है? जीन किससे बना हुआ है आपका, कौन कौन से क्रोमोसोम अवेलेबल्स हैं. एंड द फिनोटाइप मीन्स कि कौन सा करेक्टर अपीयर हो रहा है. नाउ इट सेज दैट कैपिटल ए एंड कैपिटल ए एक है, स्मॉल ए एक है, बट कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दो हैं. तो दैट इज 2. तो जीनोटाइप के 1, 2 एंड 1 फॉर द पर्टिकुलर जीन. और फिनोटाइप में क्या हुआ? मे बी जो हमने कैपिटल ए वाला लिया है वो आपका येलो कलर शो करता है एंड
तो हमने स्मॉल ए वाला लिया, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है. सो 3 में ए डोमिनेंट है, तो दैट्स वाई वी हैव 3 येलो, एंड इस वाले केस में ए रिसेसिव है एंड वी गेट 1 एज ग्रीन. ओके, नाउ सी द डिटेल ऑफ द Punnett square. The Punnett square is a square diagram that is used to predict the genotypes of a particular cross or breeding experiment. It was given by Reginald C. Punnett, who devised the approach. The diagram is used by biologists to determine the probability. Class, you can see the word probability. यहाँ पे भी कोई exact नहीं है, but जो निकलता है आपका result वो almost accurate होता है. Okay. So the diagram is used by the biologist to determine the probability of an offspring having a particular genotype. Okay, now next. अब हमने क्या किया क्लास, सी हमने यहाँ पे एक जनरेशन रिप्रेजेंट करी है ना, कि हमारे पास एक जनरेशन आएगी, तो दैट जनरेशन इज नोन एज फिलेलियल जनरेशन. दैट इज नोन एज फिलेलियल जनरेशन. नाउ जस्ट अ मिनट, यू कैन सी ओवर हेयर, इस डायग्राम में देखिए क्लास, यहाँ पे F1 लिखा है. आपने क्या किया है, दिस P रिप्रेजेंट्स योर पेरेंट जो ओरिजिनली क्रॉस कर रहे हैं. फाइन, कैपिटल येलो एंड स्मॉल येलो. सो गैमीट्स में कैपिटल येलो एंड कैपिटल येलो आएंगे, एंड स्मॉल येलो आएंगे. फाइन, सो जब कैपिटल येलो एंड स्मॉल येलो मिक्स करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई बनेगा. फाइन, सो दिस वन is your first generation and this is represented as F1 generation which is known as filial generation. Okay, अब next case में हमारे पास अलग gametes आए, this one and this one. So हमारे पास बहुत अलग अलग ratios आ गई, अलग अलग genes आ गए. So this generation is known as second generation and it is known as filial 2 generation. Now see, a generation in a breeding experiment that is successive to a mating. Successive कि next में meeting के बाद, like for example आपके parents की meeting के बाद आप लोग आए हो, so you are the first generation. Okay, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स की मीटिंग के बाद आपके पेरेंट्स आए. फाइन, दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन. एंड पेरेंट्स की मीटिंग के बाद आप लोग आए, तो यू आर द सेकेंड वन जनरेशन. सो पेरेंट्स आर द फर्स्ट फिलियल जनरेशन and you are the second filial generation. A generation in a breeding experiment that is successive to a mating between parents of two distinctively different but usually relatively pure genotypes. It is represented as F1 and F2 and many more generations in the same way. Suppose करो आपने सुना होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहते कि हमारे पेरेंट्स ऐसे थे. अगर हम उस टर्म्स में बात करें तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स की मीटिंग के बाद आपके ग्रैंड पेरेंट्स आए, दिस इज़ योर फर्स्ट फिलियल जनरेशन. आपके ग्रैंड पेरेंट्स की मीटिंग के बाद आपके पेरेंट्स आए, सो दे आर द सेकेंड फिलियल जनरेशन. पेरेंट्स की मीटिंग के बाद आप लोग आए, दैट इज़ द थर्ड फिलियल जनरेशन. ओके, सो इट कैन बी कंटिन्यूइंग इन द सेम वे. So these are the main terms that you need to understand for understanding the monohybrid cross. Now we will start what is a monohybrid cross. Now see, a monohybrid cross, mono means single, mono means single, that means one. मतलब हम एक कोई भी सिंगल करेक्टरिस्टिक ले रहे हैं बट कंट्रास्टिंग वन ऑफ टू इंडिविजुअल्स, सो दैट जब हम इन्हें क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास कोई और रिजल्ट लेके आएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टेकन द कैपिटल टी एंड द कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. दैट मीन्स आपने टॉल वाला ट्रेट लिया है, प्लांट में हाइट वाला ट्रेट लिया है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या लिया आपने, हाइट. सिंगल करेक्टरिस्टिक्स ले रहे हो, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब हाइट में क्या है, एक प्लांट टॉल होगा और एक प्लांट स्मॉल होगा. फाइन, तो स्मॉल के लिए आपने स्मॉल टी दिया, पेयर की फॉर्म में होता है हमेशा जीन्स आपके, तो आपने स्मॉल टी लिया, कैपिटल टी फॉर टॉल प्लांट. नाउ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द हाइब्रिड ऑफ टू इंडिविजुअल्स विद होमोजाइगस जीनोटाइप. सेम तरह का जीनोटाइप होगा विच रिजल्ट इन द अपोजिट फिनोटाइप, जिसमें से फिनोटाइप अलग आएगा फॉर अ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट.
Now the cross between two monohybrid traits is called as monohybrid cross. Means monohybrid characters ले रहे हो, सेम करेक्टर ले रहे हो बट डिफरेंट इंडिविजुअल्स का ले रहे हो. लाइक वन कैन बी टॉल, वन कैन बी स्मॉल. द फ्लावर शेप इन द पाइथन सतीवम इज पिंक, पर्पल और द वाइट. आपने वहाँ पे ले लिया, आपने लिया तो फ्लावर शेप कलर ना, तो फ्लावर कलर में क्या हो गया, पर्पल एंड वाइट. तो वो भी क्या एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. नाउ द नेक्स्ट वन इज monohybrid cross is responsible for the inheritance of one gene. सिर्फ एक ही जीन आएगा and it can be represented through a Punnett square. Okay, the monohybrid cross is used by genetics to observe how homozygous offsprings express a heterozygous genotype inherited from their parents. कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं. Now how to carry out a monohybrid cross. आप एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे एक्सप्रेस करोगे. द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू कैलकुलेट, दैट यू नीड टू नो व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स यू आर टेकिंग. आप कौन से करेक्टरिस्टिक्स ले रहे हो. ओके, रिसेसिव एलील्स कैन बी इंडिकेटेड बाय लोअर केस लेटर्स while the dominant will be represented by upper caste. Means capital letters में dominant one आएंगे, suppose this one, एंड द लोअर के जो रिसेसिव होंगे उसके लिए आपने क्या लिया, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ओके, नाउ नोट डाउन बोथ द फिनोटाइप. आपने दोनों के फिनोटाइप बताने कैसे दिखते हैं. ये टॉल दिखते हैं, ओके, और ये कैसे दिखते हैं, ड्वार्फ दिखते हैं. ओके, ये आपका फिनोटाइप हो गया, आपने ये लिख दिया. नेक्स्ट, note down both the phenotype and the genotype of the parents or the parental generation that are being crossed. Note down the genotype of the gametes. अब आपको gametes के genotype लिखने हैं for the parental generation. As a result of mitotic division, the gametes will be haploid. अब mitosis हो रहा है, means reductional division हो रहा है, so gametes का set क्या हो जाएगा, half हो जाएगा. क्या हो जाएगा, half. That means capital T for the first one and the small t for the second one. Okay, now आप इसको एक प्यूनेट स्क्वायर की फॉर्म में लेके आओगे तो चॉक आउट द प्रोबेबिलिटी, क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. अब उसके बाद आप फर्टिलाइजेशन कराओगे एंड देन आप देखोगे वहाँ पे फिनोटाइप क्या आ रहा है और जीनोटाइप क्या आ रहा है. ओके, so this is the method of representing a monohybrid cross. Now the first example is your now let us consider the first example, that is you have capital, that you have a parent of yellow seeds and the green color seeds. Okay, so yellow is dominant over green. Okay, you have taken parent of same color, parent आपने के लिए same gene का same character के लिए, that is color. So that means you have a yellow and the green. Okay, so जब आप इसे gametes बनाओगे तो you will have the second one as also y and the here you also have a y. Okay, आपने इसको यूनिट स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया and that come out to be, that is y is the f1 जनरेशन. अब ये आया कैसे, सी हमने ये यूनिट स्क्वायर बनाया, क्लास f1 जनरेशन को समझा रही हूँ मैं आपको. आपने फर्स्ट पेरेंट कैपिटल रखा, that is for yellow and this one is your small. Okay, so जब आपने क्रॉस कराया रोज को कॉलम के साथ तो you will get as, that is capital Y and small y, capital Y and small y. Next you also get capital Y and small y, capital Y एंड स्मॉल y. तो यू कैन से कि हर केस में कैपिटल Y डोमिनेंट है एंड सेकेंड केस में आपको स्मॉल y आ रहा है. तो आपको जो F1 जनरेशन में सीड्स आएंगे वो कैसी आएंगी, येलो कलर की आएंगी, बट जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल Y एंड स्मॉल y. अब आपने क्या किया, सेकेंड जनरेशन के लिए यही सेम जीन्स लिए एंड इनको सेल्फ ब्रीड कराया, सेल्फ ब्रीड इज के आपस में ब्रीड कराया. सो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट एज, आपके पेरेंट्स एक ये रहा एंड सेकेंड पेरेंट ये रहा. ओके, सो यू विल गेट कैपिटल Y एंड कैपिटल Y, कैपिटल Y एंड स्मॉल y,
कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई. सो अल्टीमेटली यू कैन सी कि 3 येलो कलर के प्लांट्स आएंगे बट एक ग्रीन कलर का आएगा. फाइन, दिस येलो एंड ग्रीन आर योर फिनोटाइप. ओके, बट जीनोटाइप में क्या होगा कि कैपिटल वाई एक है, दैट इज जीनोटाइपिक रेशो 1 है. कैपिटल वाई 2 है एंड स्मॉल वाई 1 है. So that you will get as genotypic ratio as 1:2:1. बट फिनोटाइप में क्या होगा, 3 येलो दिखेंगे और एक ग्रीन दिखेगा. So this was an example of monohybrid cross. Now the same way we have a second example which explains the tallness and the shortness dwarfness trait. Now you have taken tall, dwarf, tt, small. These are your parents. आपके पास गैमीट्स क्या आएंगे, दैट इज फर्स्ट जनरेशन में आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा. कैसे आया, सेम प्यूनेट स्क्वायर यू हैव टेकन. जब आप कैपिटल टी के गैमीट्स निकालोगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा क्लास, 1 गैमीट एज कैपिटल टी एंड द सेकेंड गैमीट एज ऑल्सो कैपिटल टी. बट सेकेंड पेरेंट के लिए फर्स्ट गैमीट इज ऑल स्मॉल टी एंड द सेकेंड वन इज ऑल्सो अ स्मॉल टी. सो अल्टीमेटली जब आप इन्हें क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बनेगा आपका. ओके, सो हर एक यूनिट बॉक्स में यू विल गेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. सो आपकी F1 जनरेशन क्या आ रही है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. बट ये हेट्रोजाइगस ट्रेट हो गया, मीन्स दोनों ही जीन्स अवेलेबल्स हैं. बट आपका फिजिकल अपीयरेंस में क्या आएगा कि ट्री कैसा टॉल है. अब आपने इनको सेल्फ ब्रीड कराया है तो आपके पास गैमीट्स में क्या आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ओके, सो आपने प्यूनेट बॉक्स पे बनाया है तो आपने ये देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. देन आपने इनको इधर मल्टीप्लाई कराया, देन आपने इनको इधर मल्टीप्लाई कराया, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया आपने, देन इसको और इसको मल्टीप्लाई कराया. तो यू कैन सी दैट कि जो आपके फिनोटिपिक रेशो आएगी वो यही आएगी, 3 टॉल और एक स्मॉल निकलेगा. बट जीनोटिपिक रेशो क्या आएगी, 1:2:1 की. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ, so a monohybrid ratio is the phenotypic ratio of different types of individuals occurring in the F2 generation of a monohybrid cross. तो जो एक मोनोहाइब्रिड रेशियो होती है वो आपको हमेशा ये बताएगी कि F2 जनरेशन में आपकी रेशियो हमेशा 3:1 आएगी और जीनोटिपिक रेशियो आपकी 1:2:1 आएगी. ओके, नाउ अब इसी के बेसिस पे आपके पास लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है. व्हाट डज द लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज, सी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है क्लास आपका, दैट व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर लाइन्स, अगर पेरेंट्स प्योर लाइन्स है मीन्स दोनों ही ट्रेड डोमिनेंट है एंड दोनों ही ट्रेड रिसेसिव है, वो प्योर लाइन्स हो गए. सो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर क्रॉस टुगेदर, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेड अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन. तो अगर हमने क्या लिया, एक प्लांट टॉल लिया और एक प्लांट ड्वार्फ लिया एंड दोनों प्योर लाइन्स के केस में है, तो इनका जो नेक्स्ट जनरेशन में रिजल्ट आएगा वो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के साथ आएगा. रीज़न बीइंग कि वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में आएगा. ओके, सो अल्टीमेटली द हाइब्रिड ऑब्टेन्ड होगा आपके पास ऑफस्प्रिंग का, जो ये बताएगा एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेड, जो ये बताएगा कि सिर्फ वही ट्रेड एक्सप्रेस करेगा जो डोमिनेंट इन नेचर होगा. यही आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाता है आपको. लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, in this law each character is controlled by distinct units called factors. Now distinct units called factors, basically factors को हमने genes ही बोला है. मेंडल ने टर्म दी थी फैक्टर, बट इसको हमने मॉडिफाई करके क्या बोला, जीन्स बोला. if the pairs are heterozygous, one will always dominate the other. Okay, law of dominance explains that in a monohybrid cross between a pair of contrasting traits, only one parent will be expressed in the F1 जनरेशन. F1 में सिंगल पेरेंट एक्सप्रेस करेगा, बट F2 में आपके दो अलग अलग पेरेंट्स एक्सप्रेस करेंगे. एज यू कैन सी इन द फिनोटिपिक रेशियो, तो आपका टॉल प्लांट था और
ड्वार्फ प्लांट था तो उसमें 3 टॉलर था और 1 ड्वार्फ था, बट दैट टू इन F2 जनरेशन। ओके ना, अब इसी के बेस पे हमारे पास एक सेकेंड लॉ आता है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स कि जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तब अल्टीमेटली क्या होगा क्लास, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट ईच जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। आपने देखा था कि जब हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी लिया था तो ये दोनों 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे एंड दोनों एक दूसरे से अलग अलग काम कर रहे थे, सो दैट ईच गैमीट कैरीज ओनली 1 एलील फॉर ईच जीन, एक ही जीन कैरी करेगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। This law explains that the pair of alleles segregate from each other during meiosis, कि जो आपका बेसिकली एलील्स हैं वो सेपरेट कर जाएंगे मियोसिस के टाइम पे, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, सो दैट एक ही पेयर है, नहीं तो वहाँ पे क्या होगा अल्टीमेटली क्लास, क्रोमोसोम के नंबर्स बढ़ जाएंगे एंड आपको कोई और डिजीज हो सकती है। ओके, सो दैट्स वाई मियोसिस के टाइम पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्क करना ज़रूरी है। सो सेम वे में आपका F2 जनरेशन में क्या होता है, यू कैन सी कि तीन टॉल प्लांट्स और एक स्मॉल प्लांट था। तो वो क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स आपस में मिक्स कर रहे हैं, अलग अलग एक्सप्रेस कर रहे थे। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इन द F2 जनरेशन विदाउट एनी blending. Thus the law of segregation is based on the fact that each gamete contain only 1 allele. Okay, now this law is based on 4 basic concepts. जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो 4 बेसिक चीज़ों पर डिटरमाइन किया जाता है। द फर्स्ट, अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन 1 फॉर्म ऑफ एन एलील, एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक टॉल भी है ड्वार्फ भी है। व्हेन गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेयोसिस द एलिलिक पेयर सेपरेट्स, आपके पेयर सेपरेट हो गए थे, दैट मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी जब आपस में आए थे इकट्ठे, तो जब वो गैमीट सेपरेशन हुआ था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके, एवरी ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स 2 एलील्स फॉर ईच ट्रेट, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के लिए 2 एलील्स मिल रहे थे। ओके, द 2 एलील्स ऑफ अ पेयर आर डिफरेंट, दोनों ही अलग हो सकता है, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव वन। सो what we have studied about Punnett square, filial generation, laws of dominance and segregation, and monohybrid cross. I hope this monohybrid cross is clear to you. Now the question that you need to answer is, if Rahul made a monohybrid cross between the pure purple color flower, उसने एक monohybrid cross बनाया प्योर पर्पल कलर फ्लावर के लिए, आप कोई भी जीन ले सकते हो, से आप PP ले सकते हो, आप WW ले सकते हो, आपके ऊपर है। एंड प्योर वाइट कलर फ्लावर, वाइट कलर के लिए आपने स्मॉल डब्ल्यू ले लिया, रिप्रेजेंट द क्रॉस, आपको क्रॉस बनाना है प्यूनेट स्क्वायर की फॉर्म में, एंड फिनोटिपिक रेशो एंड द जीनोटिपिक रेशो, आपको उसकी फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो भी बतानी है। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।